Welcome dear friends, in this video we will solve mock test number 9 for upcoming CSS MPT. The surah named after iron is Al-Hadid. The Quranic surah whose title means consultation is Al-Shura. Surah Al-Rahman is numbered 55. The Quranic designation Ummul Qura, mother of settlements, refers to Makkah. A Sahabi is a person who met the Prophet ﷺ as a believer and died as a Muslim. In Hadith scholarship, Ilmul Rijal is principally concerned with the biographies and reliabilities of narrators. Al-Sunan al-Sughra is associated with the Hadith scholar Al-Nasai. Balaghul Maram was uttered by Ibn Hajar al-Asqalani. The Prophet's uncle who protected him in Makkah despite not accepting Islam was Abu Talib. The mother of the Prophet Muhammad ﷺ was Amina binti Wahab. The mosque condemned in the Quran for being established to cause division was known as Masjid al-Zarar. The inscription on the Prophet's seal ring consisted of the words Muhammad Rasul Allah. Bayt Rizwan was taken after a rumor concerning the death of Hazrat Uthman bin Affan Raziyallahu Anhu. The Battle of Hunain was fought against the confederation led principally by Hawazin and Thaqif. Making up an obligatory fast on another day is termed Qaza. The state of major ritual impurity that requires ghusl is called Janaba. In Islamic commercial law, Rahan denotes a pledge or collateral. Hawala is a legal arrangement for transferring a debt or financial liability. The Abbasid revolution displaced the Umayyad dynasty in the Central Caliphate in 750 CE. Maraj al-Dhahab, the Meadows of Gold, was written by Al-Masudi. लफ्ज़ शिकायत की दुरुस्त जमा क्या है? शिकायात। वारिस की मुअन्नस सूरत कौन सी है? वारिसा। लफ्ज़ खुशी क़वाइद की रूह से क्या है? इसमें कैफियत। दोस्ताना में अना क्या है? लाहिक़ा। दुरुस्त इमला मुंतखब करें। ऑप्शन ए बिलखुसूस। जुमला वो अब तक घर पहुंचा होगा में फ़ेल किस नौ का मफ़हूम देता है? माजी एहतिमाली। आज मौसम खुशगवार है किस किस्म का जुमला है? खबरिया। जुमला वो बीमार है में है क्या है? फ़ेल नाक़िस। जुमला वो लाहौर से आया में से क़वाइद की रूह से क्या है? हर्फ जार। जुमला वो आज नहीं आएगा मैं नहीं किया है? हर्फ नफ़ी। इस्तिदलाल का करीब तरीन मफ़हूम क्या है? दलील से नतीजा अख़ज़ करना। लफ्ज़ तमहीस के मानी क्या है? गहरी जांच पड़ताल। मवाफ़िक़ का मुतज़ाद क्या है? मुखालिफ। मुहावरा मुँह की काना का मतलब क्या है? नाकामी या शिकस्त उठाना। दम बखुद रह जाना से क्या मुराद है? हिरत से खामोश रह जाना। दिल पर पत्थर रखना का मफ़हूम क्या है? जज्बात पर काबू पाकर मुश्किल फ़ैसला करना। द अथॉरिटी में रिवोक द लाइसेंस फॉर नॉन कंप्लायंस का दुरुस्त उर्दू तर्जुमा क्या है? अदम तामील पर मजाज इदारा लाइसेंस मनसूख कर सकता है। The data should be interpreted with due caution
का मौजून उर्दू तर्जुमा मुंतखब करें। आदाद व शुमार की तामीर मुनासिब एहतियात से की जानी चाहिए। कमेटी ने मामला माहिरीन के सुपर्द कर दिया का दुरुस्त अंग्रेजी तर्जुमा क्या है? द कमेटी रेफर्ड द मैटर टू द एक्सपर्ट्स। हुक्काम ने अफवाहों की तरदीद की का दुरुस्त अंग्रेजी तर्जुमा मुंतखब करे। द अथॉरिटीज डिनाइड द रूमर्स। एन एड्रॉइट नेगोशिएटर इज स्किलफुल। अ बेलवेदर is an indicator of a broad trend. A conciliatory gesture is intended to reduce hostility. To deride a proposal is to mock it contemptuously. A disease endemic to a region is regularly present there. A fallacious inference is based on faulty reasoning. To galvanize a group is to stimulate it into action. Hegemony is predominant influence or leadership. An inexorable process is impossible to stop or persuade. A litigious person is prone to resorting to lawsuits. A morose expression is gloomy. A palpable tension is readily perceptible. A quandary is a difficult dilemma. A sagacious advisor is wise and discerning. A tacit agreement is understood without being stated. An untenable position is one that cannot be defended. A volatile situation is liable to change suddenly. A proclivity is a natural tendency. Gulliver's Travels dash often read as political satire is often read. The United States dash represented at yesterday's conference was represented. 1 in every 10 applications dash selected for audit is selected for audit. Supposing the records dash destroyed, how would ownership be proved? Were destroyed. Submit the declaration today, otherwise your application dash rejected will be rejected. You dash the conflict of interest before the meeting. You ought to have disclosed the conflict of interest. The applicant resented dash from the shortlist without reasons. Resented being excluded. The new evidence made the tribunal dash its conclusion. Reconsider its conclusion. Visitors are not allowed dash photographs in the archive. To take photographs. The agency must adhere dash the statutory timetable. To the statutory timetable. Members should refrain dash commenting while the matter is sub judice. Refrain from commenting. Severe penalties may deter firms dash concealing emissions. Firms from concealing emissions. No adverse inference can be drawn dash silence alone. From silence alone. The report explains the reason dash the estimates were revised. Why the estimates were revised. Either of the two routes dash acceptable. Is acceptable. Choose the sentence with an unambiguous pronoun reference. After Ali interviewed Kamran, Ali drafted the statement. Change into indirect speech. She said, "What a remarkable recovery." She exclaimed that it was a remarkable recovery. The missing annex appears dash before circulation. Appears to have been removed.
Choose the correct possessive form. My brother-in-law's office is nearby. Choose the correctly hyphenated expression. Option A. The ministry began a long-term decision-making process. Choose the sentence free from a dangling infinitive. To prove compliance, the agency simplified the form. Select the correct correlative construction. Option C. The reform will both reduce delay and improve transparency. Questions 81 to 85 are based on this passage. Trees planting can reduce urban heat, but a city-wide count of new trees is a poor measure of benefit. A mature canopy cools more than a recently planted sapling, and survival depends on soil, water, and maintenance. Placement matters as well. Shade along walking routes and around poorly insulated homes may protect people more effectively than ornamental planting in already cool districts. If greening raises rents and displaces existing residents, the people most exposed to heat may receive little benefit. An equitable program therefore tracks canopy survival, local temperature, access to shade, and housing stability, not planting totals alone. Why is the number of trees planted an inadequate performance measure? It ignores survival, maturity, placement, and distribution of benefits. Which placement would most directly serve the passage's equity concern? Shade near exposed walking routes and poorly insulated housing. The reference to rising rents illustrates the risk that environmental improvement may displace intended beneficiaries. The author's preferred evaluation would include all except the number of publicity events held. The passage most strongly supports which conclusion? Urban cooling policy should measure who actually receives durable protection. Question 86 to 90 are based on this passage. A carbon offset should represent an emissions reduction that would not have occurred without the payment. This requirement, called additionality, is difficult to establish because it concerns an unobserved alternative future. A forest owner may claim credit for preserving trees that were never likely to be cut. Conversely, a genuine project may be denied credit if the baseline assumes implausibly rapid deforestation. Strong programs use conservative baselines, independent verification, and safeguards against shifting emissions to another location. Even then, offsets should complement rather than delay direct reductions by the purchaser. In carbon markets, additionality requires that a credited reduction would not have occurred without the offset payment. Why is additionality inherently difficult to demonstrate? It depends on comparing reality with an unobserved alternative future. An implausibly high deforestation baseline may generate credit for preservation that was likely anyway. The phrase shifting emissions refers to the possibility that protection in one place causes a harmful activity to move elsewhere. The author regards offsets as a supplement to, not a substitute for, direct reductions. Friction between two dry surfaces acts chiefly to oppose relative motion or its tendency. In a liquid at rest, pressure generally increases with depth. The turning effect of a force about a pivot is called its moment. The loudness of a sound is most directly related to the wave's amplitude. A glass prism separates white light into colors because different wavelengths undergo different degrees of refraction.
A positively charged ion is called a cation. Across a period from left to right, atomic radius generally decreases. At dynamic chemical equilibrium, the forward and reverse reactions continue at equal rates. Members of a homologous series shares the same functional group and a common general formula. Alcohol fermentation by yeast produces ethanol and carbon dioxide. Homeostasis is the maintenance of a relatively stable internal environment. A synapse is a junction through which a signal passes between neurons or a neuron and an effector. Deficiency of vitamin A may cause night blindness. The liver can store excess glucose in the form of glycogen. For most seeds, germination requires water, oxygen, and a suitable temperature. A relationship in which both participating species benefit is mutualism. The carrying capacity of an environment is the largest population it can sustain over time under prevailing conditions. Large-scale surface ocean currents are driven importantly by prevailing winds and modified by Earth's rotation and continental boundaries. Seasonal monsoon circulation is strongly influenced by differential heating of land and sea. The sun produces energy principally through nuclear fusion. As of 15 August 2026, the Prime Minister of Pakistan is Mian Mohammad Shehbaz Sharif. The first Chief of Defence Forces of Pakistan holding the office concurrently with the Chief of Army Staff is Field Marshal Syed Asim Munir. Pakistan's current elected term as a non-permanent member of the United Nations Security Council is 2025 to 2026. The Pakistan-Saudi Strategic Mutual Defense Agreement of 2025 provides that an attack on either is an attack on both. The IMF's third EFF review for Pakistan in May 2026 enabled an immediate reimbursement of about $1.1 billion. The State Bank of Pakistan's policy rate as of 15 August 2026 stood at 11.50%. The World Bank Group's Country Partnership Framework for Pakistan covering FY 2026 to FY 2035 has a duration of 10 years. The ICC Men's Champions Trophy 2025 was the first ICC event hosted in Pakistan since 1996. Which judicial institution was established under Pakistan's 27th Constitutional Amendment in 2025? Federal Constitutional Court. Under the Digital Nation Pakistan Act 2025, the National Digital Commission is chaired by the Prime Minister of Pakistan. According to the Federal Budget 2026-2027, Pakistan's total federal expenditure was budgeted at approximately Rs 18.771 trillion. HS-1, successfully launched by Pakistan in October 2025, is the country's first hyperspectral Earth observation satellite. Mohenjo-daro is a major urban site of the Indus Valley civilization. Muhammad bin Qasim's campaign in Sindh began in the early 8th century under the Umayyad Caliphate. The Vernacular Press Act in British India was enacted in 1878. The All India Muhammadan Educational Conference was founded by Sir Syed Ahmad Khan. The 1906 Simla deputation presented Muslim demands to Viceroy Lord Minto. The Nehru Report of 1928 was chaired by Motilal Nehru. At the Round Table Conferences, the constitutional future of India was
discussed with the British government headed initially by Prime Minister Ramsay MacDonald. The Khudai Khidmatgar movement is chiefly associated with Khan Abdul Ghaffar Khan. The first president of Pakistan was Iskandar Mirza. Benazir Bhutto first became Prime Minister in 1988. Pakistan's first Nobel laureate was Abdus Salam. The national flower of Pakistan is jasmine. Article 41 of the Constitution concerns the office of the President. The former presidential power under Article 58(2)(b) to dissolve the National Assembly was introduced by the 8th Amendment. The 17th Constitutional Amendment was enacted in 2003. The Sendak copper gold project is located in district Chaghi. Warsak Dam is built on the river Kabul. The Kunhar River flows through the valley of Kunhar. Evaluate 3/5 plus 7/10 divided by 13/20. 2. इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट वाले पार्ट में है 3/5 प्लस 7/10। इसका पहले हम एलसीएम लेंगे इसके डिनोमिनेटर्स का, वो है 5 और 10। तो 5 और 10 का एलसीएम है 10। तो इसी वजह से यहाँ पर तो 7/10 ऑलरेडी है, लेकिन ये जो 3/5 है इसको भी 7/10 करेंगे। इसको 7/10 किस तरह करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करें। तो 2/3 इज 6 एंड 2/5 इज 10। सो ये हो जाएगा 6/10। 6/10 प्लस 7/10 ये हो जाएंगे। अब यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर जब बराबर हो जाएंगे तो डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा और न्यूमरेटर जो है वो ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर न्यूमरेटर 6 है और यहाँ पर 7 है। 6 और 7 जो है वो 13 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट वाला जो पार्ट है ये बन जाएगा 13/10। अब 13/10 डिवाइड बाई 13/20 हो जाएगा। तो 13। अब यहाँ पर ये जो डिवीजन है, इस तरह फ्रैक्शन में जब हम डिवीजन को ख़त्म करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं। और जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो राइट साइड पे यहाँ पर जो फ्रैक्शन होता है उसका हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह पे ले जाते हैं और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह पे ले जाते हैं। तो 13/10 जिस तरह से हमने पहले फाइंड किया था 13/10 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर 13/20 के बजाय क्या हो जाएगा 20/13 हो जाएगा। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे हमारे साथ आंसर आएगा 2। A number is first increased by 25% and then increased by further 20%. The overall increased is 50%. अब यहाँ पर क्वेश्चन स्टेटमेंट में है कि 25% पहले इंक्रीज किया गया। तो 25% इंक्रीज का मतलब है कि अगर लेट सपोज वो नंबर 100 था तो अगर वो 25% इंक्रीज हो गया तो वो हो जाएगा 125। तो 125 का यहाँ पर हमारे साथ क्या मतलब बनता है, 125 का मतलब बनता है कि 1.25 ऑफ दैट नंबर। इसका मतलब है कि 100 को आप जब 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। तो अब नंबर जो भी हो उस नंबर को, ओरिजिनल नंबर को आप 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा इससे वो 25% इंक्रीज ऑफ द ओरिजिनल नंबर आएगा। तो इसी लॉजिक को बरकरार रखते हुए हम आगे फिर जाते हैं और फर्दर इंक्रीज जो है वो 20% और हुआ है। तो जब 20% और इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इससे जो रिजल्ट आएगा उसको हम 20% के इंक्रीज से मल्टीप्लाई करेंगे। 20% के इंक्रीज का मतलब है कि 1.20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो दोनों इंक्रीज है, इस दोनों इंक्रीज को हम किस तरह से फाइंड करेंगे कि 1.25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.20 से। तो जब हम ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे साथ आ जाएगा 1.50। अब 1.50 का मतलब है 150% ऑफ द ओरिजिनल। 150% ऑफ द ओरिजिनल हो गया तो जो फाइनल इंक्रीज हमारे साथ इसमें आ गया वो कितना आ गया, वो 50% आ गया। If 62.5% of a number is 250, then 14% of the number is 56। अब इसको सॉल्व करने के कई तरीके। एक तरीका तो ये है कि जो हमें दिया गया है कि 62.5% ऑफ अ नंबर इज 250, इस 62.5% को हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 62.5 यहाँ पर चूंकि पॉइंट है फिलहाल हम पॉइंट को इग्नोर करते हैं, डिवाइड बाय परसेंटेज का मतलब ये है कि डिवाइड बाय 100। 62.5% का मतलब ये है कि 62.5 डिवाइड बाय 100। इस तरह से हमने लिखा। अब यहाँ पर जो पॉइंट है इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे,
इस 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट की जगह हम 1 लिखेंगे और आगे जितने डिजिट्स है उतने जीरोज लिखेंगे। एक डिजिट है तो एक ज़ीरो हम लिखेंगे। तो ये हमारे साथ हो जाएगा 625 डिवाइड बाई 1000। अब ये 625 डिवाइड बाई 1000 को जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे साथ हो जाएगा 548। इसका मतलब ये कि 62.5% ऑफ द नंबर का मतलब ये है कि 5.8 ऑफ द नंबर, मतलब उस नंबर के अगर 8 पार्ट्स बन जाए तो उसका जो 5/8 है वो बराबर है 250 का। जब वो 250 का बराबर है तो नंबर क्या होगा, नंबर ये होगा हमारे साथ कि 250 को हम मल्टीप्लाइंग करेंगे 8/5 के साथ, तो जो नंबर है हमारे साथ ये आ गया 400। तो इसका मतलब ये है कि वो जो नंबर है वो 400 है। तो अब हम 400 का 14% फाइंड करेंगे। 400 का 14% फाइंड करने का तरीका ये है कि 14 डिवाइड बाई 100 करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 400 के साथ। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे 14 और 100 मल्टीप्लाइड बाई 400, इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे साथ फाइनल आंसर आएगा 56। 2 alloys contain copper and zinc in the ratios 3:2 and 5:3. Equal weights are mixed. The copper-zinc ratio in the mixture is 49:31. अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम कॉपर की फ्रैक्शंस को फाइंड करते हैं। तो जो पहली रेशो है 3:5, इसमें टोटल पार्ट्स बन जाते हैं 3 और 2 5। तो जो कॉपर की इसमें फ्रैक्शन हो गई वो हो गई 3 और 5। जो दूसरी रेशो है 5:3, इसमें टोटल पार्ट्स बन जाते हैं 5 और 3 8। तो इन टोटल पार्ट्स में जो कॉपर की फ्रैक्शन हो गई वो हो गई 5 और 8। तो अब इक्वल वेट गिव टोटल कॉपर, तो टोटल कॉपर हमारे साथ कितना हो गया, इन दोनों को हम जमा करेंगे तो इसमें टोटल पार्ट्स जो हमारे टोटल कॉपर जो हमारे साथ बनता है वो बनता है 49 और 40 पार्ट्स। इस तरह हम जिंक के लिए फाइंड करेंगे। जिंक का जो यहाँ पर रेशो है वो क्या है, इस रेशो में 3:2 है, 2 यहाँ पर जिंक है, तो यहाँ पर जिंक का जो फ्रैक्शन है वो क्या बनेगा, 2 और 5 बनेगा। इस तरह ये जो रेशो है इसमें जिंक का फ्रैक्शन बनेगा 3 और 8। इनको हम ऐड करेंगे तो इससे हमारे साथ आएगा 31 और 40। अब दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम ही है और सेम ही चीज़ से हमने निकाली है। तो जो मिक्सचर में इनकी रेशो बनेगी वो रेशो बनेगी, यहाँ पर 49 यहाँ से लेंगे, यहाँ पर 31 हम यहाँ से लेंगे, तो वो हो जाएगी 49:31। If A and B salaries are in the ratio 4:5, after each receives an increase of rupees 10,000, the ratio becomes 5:6, as original salary was rupees 40,000। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि जो ओरिजिनल सैलरीज है ए की 4x है और बी की 5x है। जिस तरह रेशो दी गई है 4:5, तो यहाँ से हमने एज्यूम किया कि इनकी सैलरीज 4x और 5x है। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि दोनों की रेशोज़ बढ़ती है, रुपीज़ 10,000 हो जाती है। तो इससे क्या होता है, जो रेशो है वो भी चेंज हो जाती है, वो 5:6 हो जाती है। तो हमारे साथ जो ये वाला इक्वेशन है ये बनेगा कि जो 4x जिसकी सैलरी थी उसके साथ 10,000 ऐड हो गई, तो ये 4x प्लस 10,000 हो गए। और जो 5x जिसकी सैलरी थी उसकी सैलरी के साथ 10,000 इंक्रीज़ हो गए, तो ये 5x प्लस 10,000 हो गए। अब चूंकि यहाँ पर रेशो है तो रेशो का मतलब ये है कि हम इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो 4x प्लस 10,000 डिवाइड बाई 5x प्लस 10,000 हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा। फिर ये रेशो जब 10,000 के साथ इंक्रीमेंट लग जाता है तो रेशो हो जाती है 5:6। तो 5:6 को हम 5 और 6 भी लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन, अब ये हमारे साथ एक इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को हम जब x के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या बनेगा, 24x प्लस 60,000 इक्वल 25x प्लस 50,000। इसको फर्दर x के लिए सॉल्व करें तो x हमारे साथ आएगा 10,000। अब हमने a की ओरिजिनल सैलरी फाइंड करनी है। a की ओरिजिनल सैलरी हमने एज्यूम की थी 4x। x चूँकि अब 10,000 का बराबर आ गया तो x को इस 4 को 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे साथ a की ओरिजिनल सैलरी आ जाएगी, दैट इज़ 40,000। The average of 25 results is 64. If the 5 highest results whose average is 82 are removed, the remaining average is 59.5। अब यहाँ पर हमें स्टेटमेंट में दिया गया है कि 25 रिजल्ट्स का जो एवरेज है दैट इज़ 64। तो यहाँ पर टोटल कितने बनेगा, हम 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 64 के साथ, यहाँ से पर हमारे साथ टोटल आएगा 1600।
अब हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे कि हमें दिया गया है कि जो इस एवरेज में जो 5 हाईएस्ट है उनका एवरेज 82 बनता है। तो इनका टोटल क्या बनेगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 82 हो जाए, इनका टोटल बनेगा 410। अब इन टोटल में से हम इन हाईएस्ट को रिमूव करेंगे। सो 1600 माइनस 410 इक्वल्स 1190, मतलब ये रिमेनिंग टोटल। अब ये रिमेनिंग टोटल जो है ये किन का है, ये उन 20 का है। तो हम 1190 को डिवाइड करेंगे 20 के साथ, तो हमारे साथ एवरेज आएगा 59.5। मतलब जब 5 हाईएस्ट इनके साथ इंक्लूड होते हैं तो फिर एवरेज हमारे साथ होता है 64, लेकिन 5 हाईएस्ट को जब हम रिमूव करते हैं जिनका एवरेज 82 होता है तो फिर हमारे साथ जो बाकी 20 बचते हैं उन 20 का एवरेज फिर आता है 59.5। A Elon can finish a task in 18 days. After A works for 6 days, B joins and together they finish the remainder in 4 days. B Elon would require 9 days. अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले A का रेट फाइंड करते हैं कि A एक दिन का जो उसका रेट है काम करने का वो कितना है। अब ये जो काम है ये अगर अकेले वो करता है तो वो फिनिश करता है 18 दिनों में। तो इसका मतलब ये है कि पर डे वो जो काम करते हैं 1/18, मतलब अगर उस काम के 18 हिस्से बन जाए तो एक दिन में वो 1/18 यानी 18वां हिस्सा उसका कंप्लीट करता है। 6 दिनों में कितना काम करेगा, वो 6/18 हो जाएगा। 6/18 को फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये 1/3 हो जाएगा। अब एक काम है जिसके अगर टोटल 3 हिस्से हैं तो उसका एक हिस्सा जो है उसने ऑलरेडी ए ने कंप्लीट किया 6 दिनों में, तो बाकी कितने हिस्से रह गए, बाकी रह गए 3 टोटल हिस्से हैं तो 3 में से 2 हिस्से रह गए, तो 2/3 हिस्से अब रह गए। अब 2/3 हिस्सों में जब बी उसको ज्वाइन करता है तो दोनों इस काम को कंप्लीट करते हैं 4 दिनों में। तो इनका जॉइंट रेट क्या हुआ, ये हो गया 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 हम करेंगे तो इससे आ जाएगा 1/6। जॉइंट रेट इनका ये आ गया। अब बी का रेट अगर हम फाइंड करते हैं तो बी के रेट हम इस तरह से फाइंड करेंगे कि जो जॉइंट रेट है उससे हम ए का रेट जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। जॉइंट रेट हमने फाइंड किया है 1/6 और जो ए का रेट है वो इनिशियली हमने फाइंड किया था दैट इज़ 1/18। सो 1/6 माइनस 1/18 इज़ 1/9। तो बी के ऐलान कितने दिनों के लिए, मतलब बी कितने दिनों में ये काम कर सकता है, तो वो कर सकता है ये 9 दिनों में। 9 दिनों में क्यों, क्योंकि बी के एक दिन का रेट हमने फाइंड किया कि वो 1/9 है, मतलब एक दिन में उस काम का वो 9वां हिस्सा कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि उसको 9 दिन में लगेंगे उस टोटल काम को कंप्लीट करने में। सो 9 days इज द फाइनल आंसर। 12 pumps remove 1800 liters in 15 minutes. At the same rate, 8 pumps remove 3200 liters in 40 minutes. अब हमें गिवन स्टेटमेंट में दिया गया है कि 12 पंप 1800 लीटर को रिमूव करता है 15 मिनट्स में। तो एक लीटर 1 मिनट में कितना रिमूव करेगा, पहले हम ये फाइंड करते हैं। रेट पंप पर लीटर हमारे साथ हो जाएगा 1800 डिवाइड बाई 12/15, यानी ये जो रेट ये बेसिकली जो 1800 लीटर्स है ये किसके लिए है, 12 पंप और 15 मिनट्स के लिए। सो 12/15 हो जाएगा, तो हमारे साथ आ जाएगा 10 लीटर्स। मतलब ये हो गया कि एक पंप 1 मिनट में 10 लीटर रिमूव करता है। तो 8 पंप 1 मिनट में कितने रिमूव करेंगे, 8 पंप 1 मिनट में 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 रिमूव कर देंगे तो ये हो जाएगा 80 लीटर्स, मतलब 80 लीटर पर मिनट 8 पंप्स का स्पीड हो गया। तो अब 3200 लीटर्स को रिमूव करने में कितना टाइम लगेगा, 3200 को हम डिवाइड करेंगे 80 के साथ तो हमारे साथ आएगा 40 मिनट्स। सो दैट इज़ द फाइनल आंसर। A bus scheduled to cover 300 km in 5 hours travels the first 120 km at 40 km per hour. Its required average speed for the remainder is 90 km per hour. अब यहाँ पर गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक जो टोटल टाइम अलाउड है वो है 5 आवर्स। अब फर्स्ट 120 किलोमीटर इसने जो कवर किए हैं वो किए हैं एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड रही। तो अब फर्स्ट 120 किलोमीटर के लिए इसने टाइम कितना लिया, तो टाइम के लिए हमारे साथ फार्मूला है t इज़ इक्वल टू डिस्टेंस यानी s डिवाइड बाई
स्पीड v, s और v से हम रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड को और s से हम रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस हमारे साथ जो पहला एक कितना कवर किया 120, सो 120 हो जाएगा डिवाइड बाई 40 हो जाएगा। सो 120 को जब हम 40 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे साथ आएगा 3। तो इसका मतलब ये है कि जो पहले 120 किलोमीटर इसने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किए हैं, तो इसका जो टोटल टाइम आया है वो है 3 आवर्स। अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रह गया? रिमेनिंग डिस्टेंस 120 किलोमीटर उसने ऑलरेडी कवर किए हैं, तो रिमेनिंग डिस्टेंस टोटल 300 का कितने रह गया? 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर उसने और कवर करने हैं और ऑलरेडी 3 घंटे उसके लगे हैं और टोटल टाइम जो अलाउड है वो 5 घंटे है। और तो इसका मतलब है कि रिमेनिंग टाइम उसके साथ है 2 आवर्स। मतलब अब 180 किलोमीटर को 2 घंटे में कवर करने हैं। तो अब हमने स्पीड फाइंड करना है कि कितने स्पीड से अगर ये जाए तो ये 2 घंटों में 180 किलोमीटर कवर करेगा। तो स्पीड के लिए हमारे साथ फार्मूला है v इक्वल्स टू एस ओवर टी, यानी डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। अब यहाँ डिवाइड बाई टाइम। अब यहाँ पर डिस्टेंस टोटल कितना है? 180 है और स्पीड जो हमारे पास जो टाइम हमारे पास रह गया है वो है 2 घंटे। सो 180 को 2 पे डिवाइड कर दे तो हमारे साथ आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। A runner completes one lap of 400-meter track in 80 seconds. The speed is 18 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर स्पीड हमने फाइंड करना है। स्पीड के लिए फार्मूला है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। यहाँ पर डिस्टेंस है 400 मीटर और जो टाइम है वो 80 सेकंड्स है। सो 400 डिवाइड बाय 80 हो जाएगा। इससे हमारे साथ स्पीड आएगा 5 मीटर पर सेकंड। अब हम ये जो मीटर पर सेकंड इसको कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि हमें ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो किलोमीटर पर आवर में दिए गए हैं। तो आप जब भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए हमारे साथ ये फार्मूला है कि आप उस मीटर पर सेकंड वाले स्पीड को मल्टीप्लाई करें 18 डिवाइड बाई 5 से। सो 5 मल्टीप्लाइड बाई 18 बाई 5 इज़ 18। सो हमारे साथ जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज़ 18 किलोमीटर पर आवर। A sum amounts to rupees 13,310 in 3 years at 10% compound interest. The principal was rupees 10,000. अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। C इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R होल पावर n। अब इसमें ये जो C है, C से मुराद यहाँ पर वो अमाउंट है जब इंटरेस्ट लगने के बाद आपका जो टोटल अमाउंट जितना हो जाता है, इससे मुराद वो अमाउंट है। यहाँ पर जिस तरह से अमाउंट लिखा गया है तो वो यहाँ पर गिवन स्टेटमेंट में हमें दिया गया है वो रुपीज़ 13,310। तो यहाँ पर उसकी जगह हम लिखेंगे रुपीज़ 13,310। P जो है ये हमारे साथ प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट को जो है हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट पे बेस्ड है, तो ये हम P अपनी जगह पर ऐसे छोड़ेंगे। अब 1 जो है ये तो कांस्टेंट है, 1 अपनी जगह पे आएगा। R जो है, R हमारे पास है इंटरेस्ट रेट की। इंटरेस्ट रेट कितना है? इंटरेस्ट रेट हमें दिया गया है 10%। 10% को आप लिख सकते हैं 10 ओवर 100 और 10 ओवर 100 का मतलब होता है 0.1। मतलब 10 जब आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे साथ 0.1 हो जाएगा। 0.1 को आप जब इस एक से के साथ जमा करेंगे तो ये 1.1 हो जाएंगे। और यहाँ पर ये जो n है, n से मुराद है कि कितने सालों की बात हो रही है। यहाँ पर 3 सालों की बात हो रही है, तो यहाँ पर n की जगह जो है 3 आ जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो p मल्टीप्लाइड बाई ये 1 और 0.1 ऐड हो जाएंगे। मतलब 10 और 100 0.1 के बराबर होते हैं तो 1.1 हो जाएगा और ये क्यूब हो जाएगा यहाँ पर चूँकि पावर 3 है। तो ये इसको हम फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो p हमारे साथ आ जाएगा 10,000। मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो 10,000 था। The simple interest on a sum for 5 years equals 40% of the principal. The annual rate is 8%. अब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है ऑन सम फॉर 5 years, जो कि बराबर है 5 सालों पे। क्या जो इंटरेस्ट है वो बराबर हो जाता है 40% ऑफ द प्रिंसिपल। तो हम इंटरेस्ट पर ईयर फाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि 40% 5 सालों का है, सो 40% डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। तो पर ईयर जो इंटरेस्ट है वो 8% है। इसका मतलब ये है कि एक अमाउंट है, इस पे अगर सिंपल इंटरेस्ट लगता है 8% पर ईयर, तो 5 साल बाद वो जो अमाउंट होगा तो उसका जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 40% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल एक चीज़ आपको ये नोट करनी चाहिए कि जो सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें फ़र्क ये होता है कि सिंपल इंटरेस्ट
सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो वो इंटरेस्ट हर साल कमाता है वो उसके साथ जमा होता है और उस सारों पे फिर वो इंटरेस्ट लगता जा रहा होता है, तो इसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। A dealer gains 25% after allowing a discount of 20% on the marked price. The marked price is what percentage of cost? 156.25%. अब सेलिंग प्राइस आफ्टर 20% डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 80% ऑफ द मार्क प्राइस, मतलब जो मार्क प्राइस है उसका 80% उसने पे करना होगा। अब 25% गेन का मतलब क्या है सेलिंग प्राइस पे, कि जो जितना उसका खर्चा हुआ है, कास्ट हुआ है उस पर, उसका 125%। तो हमारे साथ एक इक्वेशन इससे बनेगा कि 0.80 ऑफ द मार्क प्राइस इक्वल्स 1.25 ऑफ द, मतलब 1.25 टाइम्स ऑफ द कास्ट प्राइस। तो इसको जब हम फर्दर एम के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हमारे साथ आएगा 1.5625 ऑफ द कास्ट प्राइस। तो ये 1.5625 को जब हम परसेंटेज के हिसाब से लेंगे तो ये हो जाता है 156.25%। मतलब इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसी को, और 100 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 के लिए जो है इसकी जगह ये जो मल्टीप्लाइड बाय 100 है ये तो डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो डिवाइड बाय 100 है ये जो है ना आपके साथ परसेंट का प्राइस लेके आएगा। तो हमारे साथ हो जाएगा 156.25%। The seller's gross margin is 30% of the selling price. The profit is a percentage of cost is 42 whole 6 और 7%। अब हम इज्यूम करते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है वो है 100, तो ग्रास मार्जिन कितना होगा? 30% ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस 100 है, 100 का 30% कितना है? 30। तो कास्ट कितना हो जाएगा? कास्ट हो जाएगा हमारा 100, जो कि हमने इज्यूम किया है कि सेलिंग प्राइस है और इस पे जो इसने मार्जिन कमाया है दैट इज़ 30, सो 100 माइनस 30 इज 70। तो ये हो गया इसका टोटल कास्ट। अब प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द कास्ट कितना आएगा? 30 डिवाइड बाई 70 हो जाएगा। 70 जो कि इसने पैसे लगाए हैं टोटल, और 30 जो कि उसने उस पर कमाए हैं, और मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा। तो ये हमारे साथ हो जाएगा 42 होल 6 और 7%। A vessel contains 60 liters of milk water mixture in the ratio 2:1. How much pure milk must be added to make the ratio 3:1? 20 लीटर्स। अब यहाँ पर एक वेसल की बात हो रही है जिसमें दूध और पानी मिक्स हो गए हैं। टोटल जो है 60 लीटर्स है और इनकी जो रेशो है वो 2:1 है। मतलब 2 जो है वो मिल्क है और 1 जो है वो वाटर है। मतलब अगर टोटल 3 हिस्से हैं तो 3 हिस्सों में से 2 जो है मिल्क है और 1 हिस्सा पानी है। अब हम कितना और मिल्क इसमें ऐड करें कि ये जो रेशो है ये 3:1। 3:1 का अब यहाँ पर मतलब ये होगा कि टोटल अगर 4 हिस्से हैं तो अब 4 हिस्सों में 3 जो है वो दूध होने चाहिए और 1 जो है वो वाटर होना चाहिए। तो अब अगर 60 लीटर की बात हो रही है और 2:1 है तो मिल्क कितना आएगा? मिल्क हमारे साथ आएगा, मिल्क की रेशो क्या है? 2:1 में 2 है वो, और टोटल पार्ट्स कितने हैं? 3 है। सो 2 और 3 मल्टीप्लाइड बाई टोटल जो वेसल में जितने दूध और पानी है वो टोटल है 60 लीटर। सो 2 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 60 इज 40। तो मिल्क उस कंटेनर में आ गए 40, और जो पानी है बाकी जो रह गए तो पानी रह गए, तो वो पानी रह गए 20 लीटर। अब हमने कितने लीटर दूध ऐड करना है कि जो रेशो है वो 3:1 हो जाएंगी। तो हमने क्या करना है कि ओरिजिनल कितना दूध है वो है 40 लीटर्स। 40 के साथ हम x लीटर्स, हमें पता नहीं कि x कितना है, कि लेट सपोज हमने x लीटर्स इसके साथ और दूध ऐड किया तो वो ये 40 प्लस x हो जाएगा रेशो 20। 20 अपनी जगह पे इसलिए आएगा क्योंकि पानी को हमने चेंज नहीं करना है, पानी को एज इट इज रखना है। तो 40 प्लस x रेशो 20 इक्वल्स, तो फिर रेशो कितनी होनी चाहिए? 3:1 होनी चाहिए जो यहाँ पर दिया गया है। मतलब x लीटर्स ऑफ दूध अगर हम ऐड करेंगे तो रेशो हमारे साथ हो जाएगी 3:1। अब इसी x को हमने फाइंड करना है। तो इसको जब हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो x हमारे साथ आ जाएगा 20। तो इसका मतलब ये है कि इन 60 लीटर्स के साथ अगर 20 लीटर्स दूध और मिलाया जाए तो ये जो रेशो है ये 3:1 हो जाएगी। An area of 0.75 hectare is equal to 7,500 मीटर स्क्वायर। इसके कन्वर्जन के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 हेक्टर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं। सो 1 हेक्टर में
10,000 मीटर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर 0.75 हेक्टर की बात हो रही है, तो 0.75 को आप मल्टीप्लाई करें 10,000 के साथ, तो हमारे साथ आंसर आएगा 7,500 मीटर स्क्वायर। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 1,87,233 एंड 325 लीविंग द सेम रिमाइंडर इज 46। अब सेम रिमाइंडर का मतलब ये होता है कि जो डिवाइज़र है वो डिवाइड करता है पेयरवाइज डिफरेंस को। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है, 233 माइनस 100, जो पेयरवाइज अगर हम इसको ले लें तो 233 का हमने एक पेयर लिया, 187 का एक पेयर लिया, मतलब दो पेयर्स में हमने इसको डिवाइड किया, तो पेयरवाइज डिफरेंस आ गया यहाँ पर 46। अब यहाँ पर एक पेयर जो है जो 325 है, तो 325 और 233 का डिफरेंस फाइंड करेंगे, दैट इज़ 92, और 325 और 187 का डिफरेंस फाइंड करेंगे, दैट इज़ 138। अब हम इन तीनों का HCF फाइंड करेंगे। तो जब हम इन तीनों का HCF फाइंड करेंगे, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो वो हो जाता है 46। सो 46 इज द फाइनल आंसर। द रिमाइंडर व्हेन 3 पावर 20 इज डिवाइडेड बाय 5 इज 1। अब यहाँ पर पावर्स ऑफ 3 mod 5 जो है वो क्या रिपीट करते हैं, वो रिपीट करते हैं 3, 4, 2 और 1 को। तो ये टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। जो साइकिल लेंथ है वो हो जाएगा 4 हमारे साथ। और 20 जो है वो डिविजिबल बाई 4 है, सो 3 पावर 20 जो है उसका रिमाइंडर क्या बनेगा, 1 बनेगा। हाउ मेनी इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 500 आर डिविजिबल बाई 7 एंड नॉट बाई 5? 57। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम टोटल मल्टीपल्स को फाइंड करते हैं कि 500 तक 7 के टोटल मल्टीपल्स कितने हो सकते हैं। सो 500 डिवाइड बाई 7 करेंगे, द आंसर इज 71। अब हम मल्टीपल्स ऑफ बोथ 7 एंड 5 फाइंड करते हैं। तो 7 और 5 दोनों के मल्टीपल्स फाइंड हम इस तरह से करेंगे कि पहले हम ये देखते हैं कि पहला सबसे छोटा कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 7 और 5 दोनों का मल्टीपल हो, वो है 35। मतलब 1 से लेकर 35 तक 35 इज़ द ओनली नंबर जो कि 7 और 5 दोनों पे डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे कि 35 के मल्टीपल्स फाइंड करेंगे कि 500 के 35 के टोटल कितने मल्टीपल्स हो सकते हैं। सो 500 डिवाइड बाई 35 दैट इज़ 14। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 500 तक जो इंटीजर्स है इसमें 14 ऐसे नंबर्स है जो कि 35 पे भी डिविजिबल है और 7 पे भी डिविजिबल है। तो जब 14 हमारे साथ ऐसे इतने नंबर्स हो गए और हमने ऐसे नंबर्स फाइंड करने जो कि सिर्फ 7 पे डिविजिबल हो और 5 पे न हो, तो हम क्या करेंगे कि टोटल डिविजिबल्स ऑफ 7 मतलब टोटल मल्टीपल्स ऑफ 7 जो है वो कितने हैं, वो 71 है, और टोटल मल्टीपल्स ऑफ बोथ जो है वो 14 हो गए। 71 से हम 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, द आंसर इज 57। द एवरेज ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 41 to 79 इंक्लूसिव इज 60। अब यहाँ पर जो इंटीजर्स है 41 से 79 तक वो है कंसेक्यूटिव। तो कंसेक्यूटिव नंबर की एवरेज जो हम फाइंड करते हैं वो किस तरह से फाइंड करते हैं कि उसमें जो पहला नंबर है और जो लास्ट नंबर है उसको ऐड करते हैं और 2 पे सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर इंक्लूसिव का लफ्ज़ दिया गया है कि मतलब ये जो 41 है और 79 है ये दोनों इंक्लूडेड है। तो 41 से शुरू होता है, 79 पे ख़त्म होता है। सो 41 प्लस 79 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, द आंसर इज 60। सॉल्व 5 for x minus 1 equals 2 where x not equal to 1, x equals 7 over 2। इसको हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो x हमारे साथ आएगा 7 over 2। If x ratio y equals 3 ratio 4 and 2x plus y equals 50 then y equals 20। अब यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दिया गया है 2x plus y equals 50 और यहाँ पर दूसरे जो है वो हमें रेशो में दी गई है। अब तो या आप ये भी कर सकते हैं कि इससे एक इक्वेशन बनाएं, या दूसरा आपके साथ ये ऑप्शन है कि हम इज्यूम करते हैं कि x जो है यहाँ पर वो 3k के बराबर है और y जो है वो 4k के बराबर है, जिस तरह जो है ना 3:4 है। तो मतलब x अगर 3k हो जाता है तो ऑब्वियस बात है कि y जो है वो 4k हो जाएगी। तो स्टेप 2 में हम क्या करते हैं कि 2x प्लस वाई जो है वो किस चीज़ के बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी यहाँ पर 2x प्लस वाई में हम जो वैल्यूज़ हमने एज्यूम किए वो पुट करते हैं। तो ये हो जाएगी 2 × 3k प्लस 4k विच इक्वल्स 10k। तो इसका मतलब ये है कि 2x प्लस वाई जो है वो 10k के बराबर हो गया और 2x प्लस वाई ऑलरेडी हमें उसकी वैल्यू दी गई है कि वो 50 के बराबर है। सो 10k इक्वल्स टू 50। इसको k के लिए सॉल्व करें तो k आ जाएगा हमारे साथ 5।
अब y को हमने फाइंड करना है, तो y को हमने यहाँ पर एज्यूम किया था कि वो है 4k के बराबर। सो y इक्वल्स 4k, k 5 का बराबर हो गया, सो 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाएगा। द 20 इज फाइनल आंसर। फॉर x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 16 इक्वल 0 टू हैव इक्वल रूट्स p में इक्वल 8। अब यहाँ पर गिवन ऑप्शन में दिया गया है कि इक्वल रूट्स है, और इक्वल रूट्स उस वक्त होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 होता है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमारे साथ फार्मूला है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आपने करना है तो उसके लिए आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। तो अब यहाँ पर इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, b की जगह यहाँ पर p है तो यहाँ पर p स्क्वायर हो जाएगा, और a की जगह यहाँ पर क्या है, x के साथ यहाँ पर 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती तो इसी वजह से लिखा नहीं जाता, अदरवाइज यहाँ पर 1 होता है। तो यहाँ पर a जो है वो 1 है और c जो है वो 16 है। सो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 16 हो जाएगा विच इज़ 64, और यहाँ पर है माइनस का सिंबल, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 64। अब चूँकि इक्वल रूट्स है तो इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 64 इक्वल 0। इसको हम p के लिए डिवाइड करेंगे, सो p जो है वो +8 या -8 हो सकता है। तो जो गिवन ऑप्शन है उसमें चूँकि -8 नहीं है तो हमारे साथ फाइनल आंसर आएगा +8। The axis of symmetry y equals 2x square minus 12x plus 1 is x equals 3। एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए हमारे साथ फार्मूला है जो कि एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, दैट इज़ y इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इस तरह का एक इक्वेशन हो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का तो उसमें x जो है वो बराबर होता है -b/2a। अब यहाँ पर जो गिवन इक्वेशन है इसमें a जो है वो 2 के बराबर है, b -12 के बराबर है। तो x के लिए हम जब ये वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो x हमारे साथ आएगा 3। द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज -1। अब ये जो पॉलिनोमियल हमें दिया गया है इसको हम एक्सपेंड करते हैं, x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। इस x को जब हम इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब, x इंटू 3x इज 3x स्क्वायर, x इंटू 4 इज 4x। फिर 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे सारों के साथ, सो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, 2 इंटू 3x इज 6x एंड 2 इंटू 4 इज 8। तो इसको जब हम फर्दर जो है सॉल्व करेंगे तो हमारे साथ इस तरह का एक पॉलिनोमियल बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8। हमारा काम यहाँ पर एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट के साथ है, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर क्या कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट यहाँ पर चूँकि कोई भी कोएफिशिएंट जब नहीं दिया गया होता है तो वो 1 लिखा होता है उसके साथ, अलबत्ता लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आगे अगर हम साइन देखें तो साइन सब्ट्रैक्शन किए, माइनस किए, तो हमारे साथ फाइनल जो आंसर आएगा दैट इज़ -1। 2 पावर x इक्वल्स 5, देन 2 पावर x प्लस 2 इक्वल्स 20। अब यहाँ पर हमें दिया गया है 2 पावर x प्लस 2, तो 2 पावर x प्लस 2 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं 2 पावर x मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर। तो चूँकि 2 पावर x 5 के बराबर है तो 2 पावर x की जगह हम 5 लिखेंगे, सो 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 20। If log of 2 to the base 10 equals 0.3010, then log of 20 to the base 10 equals 1.3010। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम ये देखते हैं कि 20 जो है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो ये जो log ऑफ 20 टू द बेस 10 है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं log ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द बेस 10। तो ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि log ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द बेस 10। अब लॉगरिथम के कुछ रूल्स है, उसमें ये है कि अगर ये मल्टीप्लिकेशन में हो और आप इन दोनों को अलग करना चाहते हैं तो ये अलग करते वक्त फिर ये एडिशन में चेंज हो जाएंगे। सो log ऑफ 20 टू द बेस 10 हम जब log ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द बेस 10 लिखेंगे तो इसकी जगह हम इसको अलग अलग लिखेंगे तो वो फिर एडिशन में चेंज हो जाएंगे और ये हो जाएगा log ऑफ 2 टू द बेस 10 प्लस log ऑफ 10 टू द बेस 10। तो यहाँ पर log ऑफ 2 टू द बेस 10 जो है वो ऑलरेडी हमें दिया गया है, वो है
0.301, तो इसकी जगह हम 0.3010 लिखेंगे और log ऑफ 10 टू द बेस 10 हमारे साथ ऑलरेडी हमें पता है कि ये 1 के बराबर है, तो यहाँ पर +1 आ जाएगा। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर इज 1.3010। द रैशनलाइज्ड फॉर्म ऑफ 1 ओवर √3 - 1 इज √3 + 1 डिवाइड बाई 2। अब इसको जब हम रैशनलाइज करते हैं तो रैशनलाइजेशन का तरीका ये है कि ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर √3 + 1, इसको हम इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। इसका कंजुगेट यूजुअली जब हम लेते हैं वो सिर्फ ये होता है कि बीच में ये जो सिंबल है इसको चेंज करते हैं। यहाँ पर ये माइनस है तो इसको प्लस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 ओवर √3 - 1 मल्टीप्लाइड बाई √3 + 1 डिवाइड बाई √3 + 1। तो कंजुगेट के साथ हमने मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। तो डिनोमिनेटर यहाँ पर हमारे साथ क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर हमारे साथ आ जाएगा यहाँ पर √3 - 1 है और यहाँ पर जो है √3 + 1 है। तो ये हमारे साथ एक फार्मूला है यहाँ पर और वो है a + b इंटू a - b, a + b मल्टीप्लाइड बाई a - b। ये एक बेसिक फार्मूला है कि जब a + b a - b मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो इससे हमारे साथ आता है a² - b²। अब यहाँ पर a की जगह अगर हम एज्यूम करते हैं कि ये √3 है और b की जगह यहाँ पर 1 है, तो ये √3 - 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर √3 + 1। यहाँ पर अगेन ये a और b है, तो √3 जब स्क्वायर हो जाता है मतलब a² + b² हो जाता है, √3 जब स्क्वायर हो जाता है तो ये हो जाता है 3 और 1 जब स्क्वायर हो जाता है तो अगेन यही 1 आ जाता है। सो ये हो जाएगा 3 - 1 विच इक्वल्स टू 2। तो फाइनल आंसर हमारे साथ क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर हमारे साथ आ जाएगा √3 + 1 डिवाइड बाई 2। डिनोमिनेटर यहाँ पर हो जाएगा 2। If n of u equals 100, n of a equals 60, n of b equals 50 and n of a intersection b equals 25, then the number in neither a nor b is 15। अब इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे कि n of a यूनियन b बराबर होता है n of a प्लस n of b माइनस n of a इंटरसेक्शन b। तो यहाँ पर n of a हमें दिया गया है कि वो 60 है, n of b जो है वो हमें दिया गया है कि वो 50 है और n of a इंटरसेक्शन b भी हमें दिया गया है कि वो 25 है। तो ये हमारे साथ हो जाएगा 85। तो n of a यूनियन b हमने फाइंड किया। अब वो जो कि ना नीदर a में हो ना b में हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि टोटल हमें क्या दिया गया कि यूनिवर्सल सेट है उसमें कितने हैं 100 है। सो 100 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे n of a यूनियन b, तो 100 minus n of a union b equals to 15. The coefficient of x cube in the expansion of 1 plus x whole power 5 is 10. In 1 plus x whole power 5, इसमें जब हम coefficient of x cube फाइंड करते हैं तो इस तरह से करते हैं कि x cube का coefficient बराबर होता है c of 5/3। c of 5/3 हम लिख सकते हैं 5 factorial डिवाइड बाई 3 factorial इंटू 2 factorial। तो ये जिसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे साथ आंसर आएगा 10। A triangle and parallelogram stand on the same base and between the same parallels. The triangle's area is half of the parallelogram's area. An equilateral triangle is inscribed in a circle. Each central angle between adjacent vertices is 120 degrees. इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिनके तीनों साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं, तो इसके इक्वल आर्क्स होते हैं इन द सर्कल। सेंट्रल एंगल इसका कितना होगा 360 डिग्री डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, दैट इज 120 डिग्रीज। टू स्केल्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट हैव एक्सटर्नल एंड होल लेंथ 4 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, देन x इज 8 सेंटीमीटर। अब स्केंट थ्योरम इसके लिए हम यूज करेंगे, दैट इज एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय होल लेंथ इज इक्वल, सो दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 12 हो जाएगा विच विल बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय x। इसको हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो x इज 8। द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ अ राइट ट्राइंगल whose sides are 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter is 1 centimeter।
अब एक राइट ट्राइंगल के लिए जो इन रेडियस है वो बराबर होता है a प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाई 2। a यहाँ पर दिया गया है 3, b इज 4, c इज 5 और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, दैट इज, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे दैट इज 1 सेंटीमीटर। A cuboid's dimensions are in the ratio 1:2:3 and its volume is 162 centimeter cube. Its shortest edge is 3 centimeter. अब हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि जो इसके एजेस है वो k है, 2k है और 3k है। वॉल्यूम के लिए फार्मूला है हमारे साथ कि इन एजेस को सारों को मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा k मल्टीप्लाइड बाई 2k मल्टीप्लाइड बाई 3k विच इक्वल्स 6k क्यूब। अब 6k क्यूब यहाँ पर हमें दिया गया है कि वो उसका वॉल्यूम है 162 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये 6k क्यूब हमारे साथ बराबर हो जाएगा 162 का। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, मतलब 6 पे बोथ साइड्स डिवाइड करेंगे, तो k क्यूब इक्वल्स 27 और 27 जो है वो किस चीज़ के बराबर है, वो 3 क्यूब के बराबर है, तो इसका मतलब है k इक्वल्स टू 3। A cylinder and a cone have equal bases and equal heights. Their volume are in the ratio 3:1। सिलेंडर की वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच और कोन के वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो रेशो इनका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच रेशो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इनकी रेशो बन जाएगी 3:1। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 57 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 7 यूनिट्स। अब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इक्वल होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है वो है 5 और -7। सो 5 और -7 में जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है इस पॉइंट का वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई, और वाई की वैल्यू है यहाँ पर -7। सो हम यहाँ पर लेंगे एब्सोल्यूट ऑफ -7, तो एब्सोल्यूट ऑफ -7 का मतलब है पॉजिटिव 7। सो 7 इज द फाइनल आंसर। A line parallel to y equals -3x plus 5 has slope -3। पैरेलल लाइंस के हमेशा इक्वल स्लोप्स होते हैं। अब यहाँ पर y इक्वल्स -3x प्लस 2 का मतलब ये है कि इसका जो स्लोप है, ये जो फिगर है इसके साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा वो इसका स्लोप होगा। इसके साथ कोएफिशिएंट है x के साथ -3 है, तो इसका जो स्लोप है वो -3 है। सो द फाइनल आंसर इज -3। The angles of a triangle are in the ratio 2:3:4. The largest angle is 80 degrees। अब जो टोटल रेशो पार्ट्स है वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 2 + 3 + 4 दैट इज़ 9। मतलब जो हमें रेशो दी गई है उन सारों को हम ऐड करेंगे तो टोटल रेशो पार्ट्स 9 हो जाएंगे। अब 1 पार्ट जो है वो किसका बराबर हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो किसी भी ट्राइंगल में जो टोटल इंटरनल एंगल्स होते हैं वो 80 डिग्रीज के बराबर होते हैं, तो एक पार्ट यहाँ पर किस चीज़ का बराबर होगा, 180/9 हो जाएगा, दैट इज़ 20 डिग्रीज। अब लार्जेस्ट एंगल किसका होगा, लार्जेस्ट एंगल ये वाला होगा, तो हम 20 डिग्री को बाई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 80 डिग्रीज इज द फाइनल आंसर। द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स 1 एट ईच वर्टेक्स ऑफ एनी कन्वेक्स पॉलीगॉन इज 360 degrees. One exterior angle at each vertex is considered. For any convex polygon, their sum is always 360 degrees. The negation of some records are missing is no record is missing. No reptiles are warm-blooded. All snakes are reptiles. Therefore, no snake is warm-blooded. The implication P to Q is false only when P is true and Q is false. Find the next term: 100, 96, 88, 76, 60, 40। अब यहाँ पर ये जो नंबर दिए गए हैं इनका हम डिफरेंस फाइंड करते हैं कि कंसेक्यूटिव डिफरेंस क्या है। 100 और 96 का जो कंसेक्यूटिव डिफरेंस है दैट इज़ -4, फिर 96 और 88 का जो कंसेक्यूटिव डिफरेंस है दैट इज़ -8, 88 और 76 का कंसेक्यूटिव डिफरेंस है -12 और 76 और 60 का कंसेक्यूटिव डिफरेंस है -16। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कंसेक्यूटिव डिफरेंसेस है ये मल्टीपल्स है 4 के, मतलब 4, 8, 12, 14, तो अगला भी जो डिफरेंस होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, तो वो होना चाहिए -20। तो हमारे साथ जो अगला नंबर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा हमारे साथ 60 - 20 दैट इज़ 40। If consonants are written first at their original order, following by vowels in their original order,
प्लेन बिकम्स प्लेन। अब यहाँ पर प्लेन में कॉन्सोनेंट्स क्या है, P, L और N। वावेल्स क्या है, ओरिजिनल ऑर्डर में है, वो है A और E इसमें। तो जब हम कॉन्सोनेंट्स लिखेंगे फिर वावेल्स लिखेंगे तो फिर इस तरह ये बनेगा P, L, N और फिर A, E। Six runners P, Q, R, S, T and U finish a race. P is ahead of Q but behind R. S is behind Q. T is ahead of R. U is last. Who finishes first? T. Solution is given here. Ali points to a woman and says, her only brother is the father of my daughter. The woman is Ali's sister. अली के डॉटर का जो फादर है वो अली खुद है यहाँ पर, और जो वमेन है जो कि ओनली ब्रदर है वो है उसका अली। तो देयरफॉर द वमेन इज अलीज सिस्टर। स्टार्टिंग ईस्ट अ पर्सन मेक्स 3 सक्सेसिव राइट एंगल लेफ्ट टर्न्स। द फाइनल डायरेक्शन इज साउथ। अब यहाँ पर लेट्स सपोज ये डायरेक्शन है, ये इसका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। अब पहले जो बंदा खड़ा है वो ईस्ट से शुरू करता है, मतलब यहाँ पर लेट्स सपोज ईस्ट की तरफ वो खड़ा है और फिर वो एक राइट एंगल लेफ्ट टर्न लेता है तो नॉर्थ की तरफ आ जाता है, फिर दूसरा लेता है तो वेस्ट की तरफ आ जाता है और फिर तीसरा लेता है तो साउथ की तरफ आ जाता है। तो मतलब जब वो 3 राइट एंगल के लेफ्ट टर्न्स लेगा तो उसकी फाइनल जो डायरेक्शन होगी वो साउथ की तरफ होगी। Either the sensor failed or the cable broke, but not both. The sensor did not fail. Therefore, the cable broke. Which is odd one out? 121, 144, 169, 196, 224. 224 क्योंकि इसमें जो 121 है वो परफेक्ट स्क्वायर का है 11 का, 144 is perfect square of 12, 169 is perfect square of 13 and 196 is perfect square of 14. 224 ऐसा नंबर है जो कि किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसी वजह से ये ऑड वन आउट है। A digital display shows 4:35. What time will it show after 150 minutes? 7:05. 150 मिनट्स का क्या मतलब है कि 2 घंटे और 30 मिनट्स। तो 435 के साथ हम ऐड करेंगे 2:30, मतलब 4:35 के साथ हम 2 घंटे 30 मिनट ऐड करेंगे तो हमारे साथ ये हो जाएगा 7:05, मतलब 7:05। A month has 5 Mondays, 5 Tuesdays and 5 Wednesdays. The month has 31 days and begins on Monday. 31 डे मंथ जो होती है उसमें 3 weekdays 5 times अकर करती है, ये आपको पता होना चाहिए। If these are Monday, Tuesday and Wednesday, the month begins on Monday. The difference between a 2-digit number and the number found by reversing its digits is 45. The difference between its digits is 5. How many arrangements of the letters of Palisi begin with a vowel? 240. अब पलीसी में 2 वावेल्स है O और I। अब फर्स्ट लेटर ऑफ वावेल चूँकि हमने चूज़ करना है तो 2 तरीके हमारे साथ हो गए क्योंकि 2 वावेल्स है। अब जो इसके अलावा रह गए 5 लेटर्स रह गए जो कॉन्सोनेंट्स है। तो 5 लेटर्स को हम कितने तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं? 5 पिक्टोरियल से। और 5 पिक्टोरियल का मतलब ये होता है कि उस नंबर के जितने भी नीचे डिसेंडिंग नंबर्स हैं उन सारों से मल्टीप्लाई करें। अब 5 है तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब 1 तक आप मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 1 के साथ आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर फिर से आ जाता है। सो 5/4 इज़ 20, 20/3 इज़ 60, 60/2 इज़ 120। तो इसका मतलब है कि उन 5 लेटर्स जो है उनका लिखने का 120 वेज हो सकते हैं। अब जो इनिशियल लेटर्स है वो चूँकि वावेल हो सकते हैं, वो O और I है, 2 है, तो 2 तरीके इनिशियली और हो सकते हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 120 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे साथ 240। The total number of squares of all sizes on a standard 8x8 chessboard is 204. Total number of squares of 8x8 chessboard is 1 square plus 2 square up to 8 square। तो इसको जब हम इस तरह से कर लेते हैं तो 8 स्क्वायर तक ये 204 हो जाते हैं। On a map drawn to a scale 1:25,000, a road measures 8 centimeter. Its actual length is 2 किलोमीटर। अब जो गिवन स्केल है स्टेटमेंट में वो है 1:25,000
और इसमें 1 सेंटीमीटर जो है वो बराबर है 25,000 सेंटीमीटर का। तो 8 सेंटीमीटर बराबर हो जाएंगे 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 8 विच विल बी 2 लाख सेंटीमीटर। अब 2 लाख सेंटीमीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि हम पहले लिखेंगे 2 लाख, ये 2 लाख को हम डिवाइड करेंगे। अब 1 सेंटीमीटर जो है वो 100 मीटर का बराबर 100 सेंटीमीटर 1 मीटर का बराबर होता है। तो हम जब इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे, इससे जो फिगर आएगा वो हमारे साथ आएगा मीटर का, कि कितने मीटर से। लेकिन हमने चूंकि किलोमीटर में फाइंड करना है, तो हर मीटर में होते हैं हर किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कट जाएगा, ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ, ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ, ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ, और ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ। तो ऊपर सिर्फ 2 रह गया। तो मतलब जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो ये आ गया 2 किलोमीटर। A cuboid is built from 48 unit cubes in dimensions 4 by 4 by 3. How many unit cubes are completely inside touching no outer face? 4. जब एक इस तरह का क्यूबाइड हो, a मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई c क्यूबाइड हो, तो इसके इंटीरियर क्यूब्स के लिए हमारे साथ फार्मूला है a-2 इंटू बी -2 इंटू c-2। अब यहाँ पर हमें दिया गया है कि a जो है वो 4 है, b 4 है और c 3 है। तो ये इस फार्मूले में पुट कर दे तो हमारे साथ आंसर आएगा 4। 6 years ago, mother's age was 5 times her child's. In 6 years, it will be 3 times the child's age. The child's present age is 18 years. अब हम एज्यूम करते हैं कि चाइल्ड की जो प्रेजेंट एज है वो c के बराबर है और मदर की जो प्रेजेंट एज है वो m के बराबर हो। तो 6 ईयर एगो हम जाते हैं, तो 6 ईयर एगो मदर की जो एज है वो m-6 हो जाएगी और जो चाइल्ड की एज है वो c-6 हो जाएगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट 6 साल बाद जब हम जाते हैं तो मदर की एज 5 टाइम्स है ऑफ द चाइल्ड एज। तो ये हमारे साथ एक इक्वेशन बनेगा m-6 इक्वल्स 5 इंटू c-x। तो इससे हम m को फाइंड करेंगे, तो m हमारे साथ हो जाएगा 5c-12। अब स्टेप 3 में हम क्या करेंगे कि 6 साल बाद की जब हम बात कर दें इन 6 ईयर्स, तो 6 साल बाद क्या होता है कि मदर के एज के साथ हम 6 ऐड करेंगे और चाइल्ड की एज के साथ हम 6 ऐड करेंगे। तो m+6 इक्वल्स 3 इंटू c+x, क्योंकि इक्वेशन गिवन स्टेटमेंट में है कि 6 साल बाद जो मदर की एज होगी वो चाइल्ड की 3 टाइम्स होगी। तो यहाँ पर हमने 3 टाइम्स ले लिया। इससे हम m को फाइंड करेंगे, सो m इक्वल्स 3c+12। तो ये हमारे साथ 2 सिमुल्टेनियस इक्वेशंस बनेंगे। तो आप इसको एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, या इसके साथ आप ये भी कर सकते हैं कि एक की वैल्यू दूसरे में पुट कर दे, तो आपके साथ जो है ये c की वैल्यू निकल आएगी और c की जो करंट एज है चाइल्ड की, दैट इज 18 ईयर्स। If 2 cats catch 2 mice in 2 minutes at equal constant rates, 6 cats catch 12 mice in 4 minutes. गिवन स्टेटमेंट में है कि 2 बिल्लियाँ 2 चूहों को 2 मिनट्स में पकड़ती है। तो इसका मतलब ये है कि एक बिल्ली एक चूहे को 2 मिनट में पकड़ेगी, और तो 6 बिल्लियाँ 6 चूहों को भी 2 मिनट्स में ही पकड़ेगी। लेकिन अगर बिल्लियाँ सेम हो और जो चूहे हैं वो डबल हो जाए, 6 के बजाय वो 12 हो जाए, तो इसका मतलब है कि इसका जो टाइम है वो फिर डबल हो जाएगा, विच विल बी 4 मिनट्स। A bag has bars number 1 to 10. 1 is drawn. The probability that its number is prime is 2 or 5. अब 1 से लेकर 10 तक प्राइम नंबर्स कौन से हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कि या तो खुद पे डिविजिबल होते हैं या सिर्फ 1 पे डिविजिबल होते हैं। तो वो है 2, 3, 5 और 7। मतलब 4 ऐसे नंबर्स है 10 तक कि वो प्राइम नंबर्स है। तो जो हमारे साथ फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने होने चाहिए? 4 out of 10। सो 4 over 10 is 2 or 5।